अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं. Namaste to everyone. Myself Nikita Yadav, PG Research Scholar and Pharmaceutics. Today I am feeling very privileged to welcome our distinguished guest Dr. Sandeep Kumar Kele, Drug Control Officer. I would like to glad and extend heartiest welcome to Director Training and Placement Cell, Pratap Singh Sir, Chairperson of our Department of Pharmaceutical Sciences, Professor Sumitra Singh Ma'am, Coordinator of Training and Placement Cell, Dr. Rekha Rao Ma'am, other faculty members and my dear students. I'm very glad to welcome our special guest, Dr. Sandeep Kumar Kele. So he has a vast experience in his field. Dr. Sandeep Kumar is working as drug control officer in Kota since 2013. He has graduated from MDU Rohtak in the year 2006, and after his graduation, he has completed his M.Pharma from NIPA Mohali in 2008. Later, he pursued his doctorate from Department of Pharmaceutics, Center of Nanotechnology, NIPA Mohali, and awarded in the year 2013. It is worthy mentioning here Dr. Sandeep qualified GATE in pharmaceutical sciences in the year 2006, 2008, and 2009. Also, he qualified GPET exam year in 2010, 11, and 12. Not only he is amazing in on this field, he has cracked NET JRF in life sciences in 2009. He has numerous publications in his credit, including Molecular Pharmaceutics and Royal Society of Chemistry. Recently, a worthy guest has received Appreciation Award from Chief Minister of Rajasthan on World No Tobacco Day on 31st May 2019. In the following year, he has received Appreciation Award from District Collector Kota and Chief Medical Officer Kota on 18th Feb 2020. I hope this webinar is to be interesting today because we as students will enhance their knowledge from the experience of Dr. Sandeep Kumar. The topic of today's presentation is drug and their regulators. Now, I would like to ask our director of TP Cell, Pratap Singh sir, welcome to our today's guest. Thank you. Thanks a lot, Nikita. So you have set up a very effective pitch for today's program by your anchoring. And on behalf of entire Guru Gandeshwar University of Science and Technology, Hisar, I, in capacity of Director Training Placement Cell, express my heartiest welcome and gratitude to our today's keynote speaker, Dr. Sandeep Kumar Kele. And he is working as drug control officer in Kota, Rajasthan. And I also express my welcome to chairperson of pharma department and our training placement coordinator, Dr. Rekha Rao ji, who is basically behind all this effort, behind this entire exercise, and all the volunteers and all the students present in today's webinar. Welcome to all of you. See, all of us know that when we are in university, when we are doing our B.Pharma or M.Pharma course, then there is a dire need of coming close to the industry, coming close to the various regulations or various facts related to the drug regulations, because all these things cannot be taught in completion in our academics, in our theory papers. So when we invite personalities like Dr. Kele, so then we basically come to know what exactly is expected in industry and what is the demand of industry, what is the requirement of industry, and how these drug regulations are done. So I am hopeful that today's webinar is going to be very beneficial for all the students, and all the students will listen to each and every point to be communicated by Dr. Kele carefully, so that our knowledge is enhanced, and in totality our employability level gets increased when such sort of industry interaction programs are conducted.
before this program also, with the efforts of Dr. Rekha Rao, a number of industry interaction programs have already been conducted, and all such initiatives, all such efforts basically bridge the gap which always exists between academia and industry. So from that perspective, this webinar is going to be very beneficial, very fruitful for all of you. And again, I express my thanks and welcome to Dr. Kele, and it would be more fruitful, and we will be more happier when we will get chance to physically invite you in our university. So with these words, without taking much time, welcome to one and all present in today's webinar. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. I would like to request Chairperson of our department, Professor Sumitra Singh ma'am, to introduce our department and welcome our guest. I'm sorry, Nikita, I forgot to communicate to you. Sumitra ma'am was having some important assignment, but our Dean of Department of Pharmaceutical Sciences, Professor Neeru ma'am is with us. I welcome you, ma'am, over here, and I request you to share regarding our department with all of us. Thank you, Dr. Rekha Rao. It's my immense pleasure to be with all the participants, and Dr. Sandeep, I welcome you on behalf of the department. Just to brief about the department, you might have been told by Dr. Rekha, but still I'll brief you about the department. The department came into existence in the year 1995, starting with the BPharm program. Later on in 2002, we introduced two branches of MPharm, namely pharmaceutics and pharmaceutical chemistry. Later on, we added two more programs after 1 year, 2003, pharmacognosy and pharmacology. Since then, the department has produced a number of graduates and postgraduates and PhD scholars from the department. And the department is doing very good as reflected by the NIRF rankings of the departments. Since we have participated in the NIRF ranking, we have been within the first 50 ranks and improving year by year, and now we stand at the 27th position. This was just a brief account of the department. Coming to the regulatory affairs, we have 4 or 5 of our students who are with the regulatory positions within Haryana and outside Haryana. But still, what I feel that the students presently who are with the doing a BPharm program and MPharm program, they are not much aware of the regulatory aspects of the pharmaceutical fields. However, I had been to the UPSC as an advisor in this field, and what I found during that course that we had 4 or 5 people from our department who were appearing at the national level for the DI post, and they had done their performance was very good if I compare with the other students, but still there was some lacuna regarding the knowledge of the regulatory affairs. And it is a very good initiative taken by Dr. Rekha that the upcoming students who are passing out student or who will be interested in the field of regulatory affairs for the drug, your presentation and whatever you're giving to the students, it will be very beneficial for them. And one thing I would like that if possible, if you can add in your presentation something about IPC, Indian Pharmacopoeia Commission, and CDCSO, what are the clinical trials, whatever CDCSO and the IPC is taking care of, Indian Pharmacopoeia Commission, that will be very beneficial for our students, because what are the latest developments going on in this regulation is indeed very important for our students. So without taking much more time, I would like that you should start with your presentation, and I would request all the students to please listen carefully and see what are the avenues which exist in the field of drug regulations. Thank you very much, Rekha, for giving me a few minutes to share my thoughts and to welcome Dr. Sandeep within us. Thank you very much.
Thank you so much, ma'am. Now, our wait is over. So I would like to request our Excuse worthy me. guest, Dr. Excuse me. Good Yes, morning, ma'am. all. I have also joined the meeting. Welcome. I would like to thank our Dean, Professor Neelu Vasudeva Madam. And thank you, Dr. Sunil, for sparing the valuable time for our students. I'm sure your presentation will add up knowledge of our student. Thanks for sparing time. Please, now you can continue. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. In spite of your so busy schedule, you have spared few minutes for us, and you have joined. I'm very happy, and I think Dr. Sandeep can start with his presentation because more than 70 students have joined now. So, yes, Dr. Sandeep. First of all, thank you very much for inviting me for this presentation. I will say you bring me back in my B.Pharm days. Seriously, I'm really feel very good to interact with the students. Before I will start my presentation, I would like to ask a simple question. You, from the student side, not from the faculty side, that whether I will communicate in my presentation in English, Hindi, or in Haryanvi. Because I'm going to miss this Haryanvi accent, although I have joined Rajasthan 10 years back. But एक जो हरियाणवी accent है, I'm really missing that. क्योंकि जब मैं हॉस्टल में रहता था तो अक्सर एक आवाज आती थी, अरे तड़के तड़के तुमने ये डोगरे बजाने के अलावा और कोई भी काम है के? खड़े का है, आसी का है के? ना जी मैं तो रोज तक का सुन. So that accent is going to miss. That I'm missing. So next is up to you. Whether I think I will amalgamate all those languages to make much more good for the students so that they can understand each and every line in the sentence of the presentation. And thankful to Rekha ma'am who bring me once again to my past, Pradeep sir, the dean ma'am, and definitely the chairperson head of the departments. So thank you very much. So I'm going to commence my presentation. Okay, is it visible, ma'am? Yes, Dr. Sandeep, it is visible. You are audible also. So my presentation is that drugs and their regulator. So before I will start directly to my main presentation, you can see there is one slide because it has been bring to my notice that most of the undergraduate students are also joining this presentation. So although they are not selected in the medical, but they have joined the novel profession that is of pharmaceutical sciences. I will say that my wife is MBBS MD. So that's why there is a battle is going on between us, that who thinks that I am better, I will claim that I am better. So that is not, question is not about who is better. The fact is that we are together to make something better. That is the fact. हाँ वो बात हो रहा है कि उस रात मुझे स्टडी रूम में सोना पड़ता है जब भी ये बैटल होता है. But the fact, because you can see the pharmaceutical sciences and the doctors, we are exactly complementary to each other, like the DNA strands, that the genetic materials that supports the whole of the universe. So don't compare with the medical science. You are also equivalent. Do the noble profession and enjoy. Enjoy करना है आपको फार्मेसी को. जो बच्चा enjoy करेगा वही इसमें successful होगा. जो enjoy नहीं कर पाएगा वो थोड़ा बीच में रह जाएगा. You should have to enjoy each and everything. Whether this is of any kind of subject, pharmaceutics, pharmaceutical chemistry, whatever it is of. But the fact is that success का एक ही तरीका होता है, या तो उसको follow करो या उसको अपना बना लो. So it's up to you. या तो तमाशा देख लो या तमाशा कर लो. So before I will start, I don't want that my presentation or this session should be univocal. I want the voices from the back side also, the students also. So there must be some questionnaire from the students also in my presentation. So keep them unmute so that they can reply us. I think the coordinator have unmuted them. Okay, tell me how many of students from B.Pharm first year, second year, third year, fourth year? Interact करो बच्चे.
अकेला मैं hesitate. actually इसका ये भी है, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कोई सोएगा तो नहीं. Sir, there are 16 students from B Pharmacy final year. Final year, okay, that's great. Anyone from first year? Okay, from second year? Yes, sir. Okay, second year, okay. From third year? Tushar is there. Yes, Tushar. How many students from your class? तो थर्ड ईयर बहुत क्रूशियल है. Other students from your class? Okay. Have you gone through about these terminologies, spurious drugs, adulterated drugs and misbranded drug? So my question is that इनमें से एक हिंदी का वर्ड आता है कि नकली दवा, या फिर एक प्रॉपर इंग्लिश में बोलूं तो मैं काउंटरफीट मेडिसिन्स. तो इनमें से कौन सी नकली दवा है? Spurious drug. अडल्टरेटेड है या मिसब्रांडेड है? Spurious, sir. Spurious. Spurious. Okay. Any other? Okay. I will discuss this in a later presentation, but before coming to that one, so please tell me this slide is very important. This is the base of this presentation. So can anybody tell me out of these medical oxygen cylinder, this BP apparatus, this needle and syringes, this bandage and gauze, blood bag, blood stunts and Preganus, how many of think you that they all are drugs, or they few are drugs, or they are not drugs? इनमें से कौन सी ड्रग है, कौन सी नहीं है, या सारी ड्रग है? मैं इमीडिएटली करूंगा. बहुत लोग इसका साइड पे बड़ा सैनिटाइजर. Recently, I Which guess is- medical devices is Sanitizer. also added in the definition of drugs. So Yes. I guess all of them are drug except that oxygen cylinder. I don't know if oxygen cylinder comes under medical devices category or not. Okay, very good. If it comes, then they all are drugs. Preganus is also a drug. Blood bag is blood is a drug or not? सर ब्लड के कंपोनेंट्स को हम ड्रग्स की तरह मतलब यूज तो करते हैं बायोलॉजिकल. Blood as such use नहीं करते हम, हाँ? Okay, don't worry. I will mix the concept. So I will say they all are drugs excluded Preganus. This is not a drug. And why it is not a drug? I will tell you. Before, the very important part is what is a drug? The statement and the paragraphs. There are some very, very important points that you always keep in your mind. The first one, it's saying that all medicines. All medicine means to say that's you are studying in your pharmacology. All the antihypertensives and all of the drugs, they are medicines. And the second word is very important, all substances. Mean to say this all substance, what is saying that there are some substances which do not have therapeutically active, but they are still classified as a drug. Okay, medicines are a drug, and the substances that do not have therapeutic activity, but still they are a drug. But they are used for treatment of diagnosis, treatment, mitigation, and prevention of a drug or disease or disorder in human beings. Okay, the word important is disease or disorder. This is very important word. So I have stated few years back that Preganus is not a drug because pregnancy is not a disease. It is not a disorder. Actually, this is a human physiology. So that's why it is not a drug. ड्रग वही होगी तो किसी डिजीज या डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, मिटिगेशन या प्रिवेंशन में काम. That will be the drug. So that's why Preganus is not a drug. Next one statement is very important. All the substances other than food intended to affect the structure. Okay, first of all, you tell me that आप जब लोग दवाई लेने जाते हो तो
दवाई की जो मेडिकल शॉप होती है, यू विल फाउंड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या वहां पर खाली ड्रग्स ही मिलती है या फूड आइटम्स भी होते हैं? फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं, ड्रग आइटम्स भी होते हैं। तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज? आपने एक सिरप की बोतल खरीदी, मल्टीविटामिन सिरप ले लीजिए, तो आप कैसे बताओगे कि वो ड्रग है या फूड सप्लीमेंट है? एनीवन? सर वो अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी को इफेक्ट कर रहा है तो वो आई गेस फूड सप्लीमेंट होगा, इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन अगर कोई मैंने एक बोतल दी है, 2 बोतल दी है, 2 सिरप्स की बोतल है, ठीक है, आप इसमें से एक फूड सप्लीमेंट है और एक ड्रग है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो ड्रग है या फूड सप्लीमेंट है? ओके, this is very important for being in a novel profession of pharmacy. You at least capable of identifying that what is a drug and what is a food supplement. So आज के बाद से जितना भी मेरे जो अभी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, तो जब भी आप दवाई खरीदो एटलीस्ट उसका लेबल जरूर पढ़े। आपको जो ड्रग का लेबल होगी, जो ड्रग होगी, उसके ऊपर हमेशा IP, BP या USP लिखा होगा। mean to say that is a drug, that vitamins falls in the category of a drug, क्योंकि विटामिन्स कुछ कंसंट्रेशन तक ही फूड में आते हैं, उसके बाद वो ड्रग में चले जाते हैं। अगर जिस पे IP, BP, USP नहीं लिखा तो mean to say that is a food item, okay, and that if लिखा है तो mean to that is a drug. So उसको बनाने के लिए, उसको बेचने के लिए आपको ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि आ ही गया, तो जब भी आप किसी ड्रग का लेबल देखते हो तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई से एक्सपायरी डेट ऑफ ए ड्रग इज दिस अक्टूबर 21, सो इसका मतलब क्या है? क्या वो ड्रग अक्टूबर 21 में यूज की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? क्या वो सितंबर तक ही यूज करनी थी, अक्टूबर 21 तक यूज नहीं की जा सकती? एक्सपायरी डेट इज मेंशनिंग दैट it is expired in going to be expired in October 21. Anyone? जनरली आप ले जा सकती है सर, अक्टूबर जा में सकती है सर। आप कह रहे हैं अक्टूबर में एक्सपायर होगी, आप मुझे क्यों दे रहे हो? ओके, so before going to that, what is expiry date? What is expiry date? सर उस डेट तक जो उसमें इंग्रेडिएंट्स है उनकी पोटेंसी मेंटेन रहती है और उसके बाद वो डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। वक्त तो करेगी एक्सपायरी डेट के बाद, पर इतना अच्छा नहीं करेगी जितना एक्सपायरी डेट तक कर रही थी वो, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन होगी सर। इन विच ईयर डू यू रीड? कौन से साल में हो आप? सर सेकंड ईयर में हो, एम फार्म सेकंड ईयर में। एम फार्म सेकंड ईयर। विच स्ट्रीम? यस सर, स्ट्रीम फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी, ग्रेट, यस सर। ग्रेट टू हियर। स्टैटिस्टिक्स वाले कुछ नहीं बोल रहे, कॉग्नोसी बोल रहे हैं। ओके, पार्शियली यू आर राइट। एक्सपायरी ड्रग, अच्छा एक बात सर आई गेस यस 10% सर, शायद उसका 10% तक मैक्सिमम डिके होता है, उसको हम मतलब सूटेक्स में पढ़ा था। वो तो शेल्फ लाइफ होती है, एक्सपायरी डेट क्या होती है फिर? ओके ओके, एक्सपायरी डेट सिंपली मींस दैट, पहले तो मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। एक्सपायरी डेट अगर आपको अक्टूबर 21 लिखा है तो मीन टू से यू कैन यूज इट अप टू द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ। ओके, मीन टू से 31 ऑफ अक्टूबर तक आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अक्टूबर की पहली तारीख को आप उठा के फेंक दो कि एक्सपायर हो गई है। इट इज नॉट लाइक दैट। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सपायरी, expiry state is there the time period up to which it is going to retain its first potency and the second it is safe. Okay, ये 10% 20% ठीक है, बट जितना भी 3 साल लिखा है, 5 साल लिखा है, जितना भी लिखा है उस टाइम तक उसमें जो पोटेंसी लेवल क्लेम है उसके ±10% हो सकती है, लेकिन वो सेफ होगी, कोई एडवर्स इफेक्शन उसका नहीं होगा, कोई उसके साइड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे ड्यूरिंग स्टोरेज इवन। ओके, अच्छा, किसी लेबल पे, किसी बोतल पे या किसी दवा के ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं लिखा, खाली मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है, तो इसकी एक्सपायरी कितनी होती है? लगभग एक बोतल पे मैन्युफैक्चरिंग डेट
मान लो अक्टूबर, मैन्युफैक्चर्ड इन अक्टूबर 2021. So what can be its expiry date? जहां नहीं लिखा होता, मोस्ट ऑफ द पे लिखा रहता है, जहां नहीं लिखा होगा तो उसकी एक्सपायरी डेट कैसे कितनी होगी? अगर नहीं लिखा है तो इट शुड नॉट बी मोर देन 60 months, मीन टू से 5 years, 5 साल से ज्यादा नहीं होगा. 5 years. 5 years, yes, 5 years. You are right. Now you are right. ये जीपैट के क्वेश्चन है भैया, जो तैयारी कर रहे हैं बी फॉर्म फाइनल ईयर के, तो है ना, थोड़ा इसमें वो टच आएगा प्रेजेंटेशन में, मैं पूछता रहूंगा और बताता रहूंगा, तो हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन आपके काम के हो, क्योंकि मैंने जीपैट मेरे टाइम में तो पहले गेट होता था 2006 में, तो जो 2-4 क्वेश्चन आए थे इसलिए मुझे याद है, तो हो सकता है कि आपको भी रिवाइव हो जाए और आपके इसमें भी आ जाए. ओके, so next statement is all the substances intended to use as a component of a drug. Okay, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, ये जो सिरिंजेस हैं, they are also as a drug. क्यों? क्योंकि इंजेक्शन, आप कोई भी इंजेक्शन लगाते हो एज सच नहीं लगा सकते. You have needle, you have syringes to inject that. The whole of the system will make it as a drug. इसी तरह से जो खाली कैप्सूल सेल्स होते हैं, empty, जिसमें कुछ नहीं भरा गया, they are still counted as a drug. And the last one is very important, devices. This अभी ये लड़का बता रहा था कि medical devices में आ गए हैं. They all are BP operators, your ये cardiac stents. They are medical devices. There is separate inspector, medical device inspector for India. The central government has launched. They have doing these, you know, X-ray machine, CT scan machine. They are all meant for diagnosis of a disease. So whenever the word comes disease, it means that जो भी होगा उसकी diagnosis में या prevention में, they will become as a drug. Now the blood, अभी कुछ देर पहले इन्होंने बताया कि blood क्या बताया कि it's an component हम as a drug के use करते हैं. Yes, you are absolutely right. Blood have its, one is whole human blood and second one is platelets. आजकल जो components, जो डेंगू चल रहा है उसमें क्या करते हैं हम, प्लेटलेट्स कंपोनेंट बनाते हैं, इसके प्लेटलेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स, आरडीपी, एसडीपी. सो ब्लड इज आल्सो ए ड्रग. इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट डेंगू इज ए डिजीज, थैलेसीमिया इज ए डिजीज, हेमोफीलिया इज ए डिजीज. सो ऑल दीज disease for the treatment we can use as a blood, either blood, whole human blood, components or the blood products. Okay, the clotting factors, they are called as blood products, and the components are RBC, your platelets and plasma. So that's, I will, agar mujhe kisi din fir bulaya gaya to I will do with a detail with this blood and blood component system. So now we're coming to the main thrust of the presentation, that is superior drugs. So अभी एक बहुत अच्छा जवाब, I'm really very happy कि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी अच्छी आती है. यस, जो नकली दवा होती है उसमें एक्चुअल में सुपीरियर ड्रग्स ही बोलते हैं. अभी कुछ दिन पहले एक आया था कि सर डॉक्टर से डर नहीं लगता लेकिन नकली दवाओं से डर लगता है. So these are the superior drugs. So we are main role in regulating these drugs. So I'm going to make you much more in a practical experience. आज तक शायद आप लोगों ने जो ब्रिटिश लैंग्वेज ही पढ़ी है तो मैं उसको, लैंग्वेज वही रहेगी, but I will try to elaborate with some examples so that will be kept in your memory for a longer time. So first one, what is a superior drug? The criteria or the cases in which a drug will fall into the category of a superior one. Okay, फर्स्ट वन, अगर किसी भी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो दैट विल बिकम ए सुपीरियर ड्रग. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैंने एक पैरासीटामोल टैबलेट का सैंपल लिया और उस पर जो एड्रेस लिखा गया था वो रोहतक हरियाणा का था, ABC, बट एक्चुअल में वो फर्म रोहतक में है ही नहीं, इट इज नॉट लोकेटेड, है ही नहीं, या फिर इसका एड्रेस रोहतक में ना हो कि ये हिसार में है, दैट ड्रग विल बिकम योर सुपीरियर ड्रग व्हेन इट्स एड्रेस और
the company is fictitious. Fictitious का मतलब होता है झूठा. Okay. Now second example, if it's purported to be a product of a manufacturer whom it is not a truly a product. For example, इसमें एक्चुअली माय किड इज सिटिंग है क्योंकि इसकी मम्मी हॉस्पिटल गई है आज, तो ये मेरे साथ इधर ही बैठा है. ओके. शिवांश बेटा थोड़ा सा स्लो. ओके. So if it's purported to be the product of a manufacturer whom it is not truly a product. For example, I have taken a sample of pantoprazole and it got failed. तो मैंने कंपनी को चिट्ठी लिखी है कि क्या ये प्रोडक्ट आपने बनाया है, ये सैंपल आपका फेल हुआ है. अगर मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ ही मना कर दे कि नहीं सर, कि मेरे पास इसकी प्रोडक्ट परमिशन नहीं है, मैंने तो आज तक इंजेक्शन ही नहीं बनाया है, कोई और कंपनी ने मेरा लेबल कॉपी किया है, वो इसको बना रही है, इट इज नॉट माई प्रोडक्ट. So it is not the company products and he claims that this is not my product, so that drug will become superior. Going to the next one. If it is substituted wholly or partially with another drug, yes, this point is very important. जैसे कि मैंने बताया superior और नकली का एक्चुअल में मतलब क्या होता है वो इस स्टेटमेंट से क्लियर होता है. जनरली नकली दवा वो होती है जिसमें आपका API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जीरो हो, इट्स नल, it does not have API, it will become a superior drugs. या फिर उसकी जगह कोई और ड्रग उसमें डाल दी गई है, okay, so that will also become a superior drug. For example, एक मैंने टैबलेट की स्ट्रिप उठाई, उस पे लेबल पे लिखा हुआ है each uncoated tablets contains glipizide 5 mg tablet. So glipizide is anti-diabetic drug, all of you are knowing. अगर उसके अंदर glipizide है ही नहीं, nil है, zero, mean to say that will be a superior drug. अगर मैं आपको one short drug, one short sentence में अगर कोई आपसे पूछे कि what is a superior drug, then your reply should be any drug which contains the API zero. उसमें zero है ही नहीं, it only contains the excipient. That is the one short and sweet the definition of a superior drug. Or इस अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स प्रीगैबलिन 50 mg. उसके लेबल पे लिखा है कि इसके अंदर जो है वो प्रीगैबलिन है, दैट इज एन एंटी एपिलेप्टिक सॉल्ट, लेकिन उसके अंदर प्रीगैबलिन नहीं मिला, उसके अंदर गाबापेंटिन मिला. तो जो वो क्लेम कर रहा है वो तो उसके अंदर है नहीं, मीन टू से दैट इज निल. इट अंडरस्टूड दैट प्रीगैबलिन इज निल, ओके, एंड इट कंटेन्स अनदर सॉल्ट दैट इज गाबापेंटिन. कई बार जैसे म्यू ड्रग्स का नाम आपने सुना हो, तो कई बार क्या होता है, कुछ एक इंडस्ट्रीज, आई विल से द ड्रग पेडलर्स, कुछ साल्ट्स की कीमत जो है हाई होती है और कुछ की कम होती है, तो वो क्या करते हैं, लेबल क्लेम ज्यादा का कर देते हैं लेकिन डालते कम कर. कुछ साल्ट्स महंगे होते हैं, कुछ साल्ट सस्ते होते हैं, लेकिन क्लास ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो उसमें ये सुपीरियर ड्रग्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. Next one is if it is manufactured under a name which belongs to another drug. This is also very good. अभी जैसे कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, तो उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का हाहाकार मची थी, आप सब लोगों को पता है. Everyone is demanding that we need an remdesivir, where are you, come back and save the lives. So I mean that title is given by me. Okay. So ये जो परमिशन थी इसको बनाने की सिर्फ 4 या 5 कंपनी को मिली थी, और कोई कंपनी इसको बना नहीं सकती थी. अगर उन 4 या 5 कंपनी के अलावा किसी और कंपनी ने इसको बनाया, so that will become a superior drug. Okay, अच्छा, ये जनरली पता कैसे चलता है कि मार्केट में सुपीरियर ड्रग आई हुई है या नहीं आई हुई है? How you are going to इसमें द बेस्ट एग्जांपल मैं अगर कहना चाहूँ तो देखो, जो सुपीरियर ड्रग्स मेकर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं. एक तो खाली नाम और ब्रांड चुराते हैं, दूसरा नाम चुराते हैं, ब्रांड चुराते हैं, साल्ट भी चुरा लेते हैं, और तीसरा अगर मैं इसको अदरवाइज कहूँ तो खाली नाम और ब्रांड चुराते हैं लेकिन साल्ट पूरा रखते हैं. मतलब रेमडेसिविर, एक आप मान लो प्रदीप सर बना रहे हैं एक रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक मैं बना रहा हूँ, प्रदीप सर का बहुत अच्छा
ब्रांड है, तो मैंने खाली उनका ब्रांड कॉपी किया। बाकी रेमडेसिविर मैंने भी 50-100 मिलीग्राम डाला, उनका भी 50-100 मिलीग्राम है, लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट परमिशन नहीं है, मैं सुपीरियर हूँ। एक तो ये है कि मैंने हाँ एथिक्स के थोड़ा सा पालना की कि मैं भी कुछ तो डाला मैंने, दूसरे हैं डालते ही नहीं है, खाली नाम कॉपी किया, ठीक है, लेबल कॉपी किया, रेमडेसिविर 0 नकली। अभी कुछ सेलाइंस चढ़ा दिए थे, ऐसा केस हुआ है, एमपी से इधर से ड्रग्स आई थी, दे हैवंट इनकॉर्पोरेटेड रेमडेसिविर इन दैट, सो वो मच मोर डिफॉल्टर आई विल से कि उन्होंने तो डाला ही नहीं। सो एक प्रोडक्ट परमिशन, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले वो ड्रग कंट्रोलर से प्रोडक्ट परमिशन लेती है कि यस आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर these प्रोडक्ट्स एंड दैट विल बी द लेबल क्राइटेरिया ऑफ these ones। अगर वो उनको छोड़ के उसने कुछ और एक्स्ट्रा बना लिया तो दैट विल बी अ सुपीरियर ड्रग। सो मैं ये कह रहा था कि सुपीरियर ड्रग्स का जनरली पता कैसे चलता है। जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन ले लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे सिप्ला ने बनानी स्टार्ट की, सिप्ला ने बनानी स्टार्ट की, एक मंथ में मान लीजिए 50,000 या फिर 1 लाख उन्होंने इंजेक्शन बनाए, ओके। तो जो इनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या कहते हैं, मंथली इनका सेल्स स्टेटमेंट जाती है। तो कंपनी ने बनाया उस मंथ 1 लाख इंजेक्शन, बट जो सेल रिप्रेजेंटेटिव उसको स्टेटमेंट दे रहा है कि सर 5 लाख इंजेक्शन की सेल हुई है। सो हाउ इट कैन पॉसिबल, बना ही कर रहे हैं, या तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव झूठ बोल रहा है, या फिर ये 4 लाख इंजेक्शन आए कहाँ से, मतलब कोई और कंपनी उनका लेबल करके ये तो ओके। सो आर यू गॉट द कॉन्सेप्ट, आई होप सो। कंपनी ने बनाए 1 लाख, एमआर दे रहा है कि 5 लाख की सेल, एमआर झूठ बोल रहा है, या फिर उसके नाम से, उसके लेबल के नाम से जो है सुपीरियर ड्रग्स मार्केट में एंटर हो चुकी है, और फिर उनकी मासिव सैंपलिंग होती है टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली ये देखो, मैं नकली दवाई बनाऊंगा या तो जाहिर सी बात है कि सारा जो गेम है उससे रिलेटेड होता है कि लास्ट में जो पैसा जो है वो मेरे पास आना चाहिए। अगर वो पैसा कंपनी के हेड में नहीं गया, मीन टू से आई विल बी द कल्प्रिट, आई एम गोइंग टू ट्रैक, द पीपल आर गोइंग टू ट्रैक मी वाया सेल परचेज बिल्स। हर एक से पूछते हैं कि आपने कहाँ से खरीदा, आपने कहाँ से खरीदा। अगर कोई भी फर्म सस्पेक्टेड होती है कि यस, और कंपनी मैन्युफैक्चरर फर्म उसको डिनाई कर देती है कि मैंने ड्रग्स इस फर्म को तो बेची ही नहीं, तो मीन टू से दैट फर्म विल बी डिफॉल्टर एंड दैट मे हैव लिंक with your superior drug manufacturer. Next one is if it is a imitation. Imitation का मतलब होता है नकल, जैसे मैंने बताया, बिल्कुल कॉपी, as it is कॉपी उसका लेबल किया गया हो और उसमें एक्चुअली कोई ड्रग ना हो। इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट का सिंपल सा मीनिंग यही है कि you be somebody have copy exactly all, फुल स्टॉप से लेकर कोमा से लेकर सब कुछ उन्होंने कॉपी पेस्ट करके ड्रग बना दिया, लेकिन उसके अंदर एक्चुअल में ड्रग नहीं है। It doesn't, it has to reveal its true character, its lack of identity with other such drug. So this is all regarding with superior drugs. ये 5 क्राइटेरिया ही ऐसे हैं जो superior drugs की कैटेगरी। और being in pharmacy profession, आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए कि अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, मिसब्रांडेड क्या है और सुपीरियर क्या है, क्योंकि आप जिंदगी भर इनके टच में रहोगे, चाहे भले ही आप बाद में प्रोफेशन चेंज करो या ना चेंज करो, बट एट लीस्ट इफ यू हैव डन डिग्री इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज अ सुपीरियर ड्रग, व्हाट इज अडल्ट्रेटेड ड्रग एंड व्हाट इज अ मिसब्रांडेड ड्रग, एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ड्रग। नेक्स्ट we will come to the other part, that is adulterated drugs. इसको हिंदी में हम बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, मिलावटी ड्रग्स। तो मिलावटी ड्रग्स से पार्टिकुलरली अगर मैं इसमें कंसर्न दूं तो जो स्टेटमेंट है, इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ ए होल और इन ए पार्ट और ए फ्लिपी पुट्रेड डिकम्पोज, मतलब गला सड़ा हुआ पार्ट कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस पहली स्टेटमेंट और हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर
in sanitary conditions whereby it may have been contaminated with plinth or whereby it may have been rendered injurious to health. For example, आप एक कफ सिरप खरीदने गए, उस कफ सिरप की बोतल में आपको कोई भी इंसेक्ट, मक्खी या कोई भी इंसेक्ट दिखाई देता है, that is putrid decomposed part, so that will become an adulterated drug. आप इनो की बोतल खरीदने गए, उसके अंदर आपको कोई इंसेक्ट दिखाई दिया या इवन द हेयर, जो बाल जो आता है ना, अगर आपने कभी मैन्युफैक्चरिंग फर्म का विजिट किया हो तो वो सब कैप पहनते हैं कि हेयर से कंटामिनेशन ना हो, नेल से कंटामिनेशन ना हो, कोई इंसेक्ट ना आए, इनमें से कोई भी अगर उस फॉर्मुलेशन में एंट्रैप हो जाता है, so that will make the drug adulterated. Very nice, very nice. मैं बताता हूँ थोड़ी देर. Okay. Any insect or putrid decomposed part, if you find in that formulation, so that will become an adulterated one. Second one is that अगर इसका कंटेनर जो है, most of the हमने ग्लासेस की टाइप पढ़ी है, टाइप ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3, एल्कली रिलीज होता है, तो कोई एल्कली रिलीज अगर उसमें हो रहा है और कोई भी उसमें ऐसा साल्ट है जो कि एल्कलाइन कंडीशन में रिवर्ट बैक हो जाता है, कुछ ऐसा साइड प्रोडक्ट बना देता है जो कि इंजूरियस टू हेल्थ है, सो दैट विल आल्सो बिकम द अडल्टरेटेड ड्रग. इसी तरह प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, काफी सब जितने भी कंटेनर्स क्लोजर्स आप पढ़ोगे उसमें प्रॉब्लम्स होती है, सो अगर उनका कोई पार्ट से रिलेटेड, उनकी वजह से कोई अगर कोई दिक्कत फॉर्मुलेशन में आई है, सो दैट विल बी योर अडल्टरेटेड ड्रग. नेक्स्ट वन इज, अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी फॉर्मुलेशन में सनसेट येलो है, लेकिन सनसेट येलो ना होके उसमें कार्मिनोसिन है या फिर टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जो कलर मैंने क्लेम किया वो नहीं मिला, उसकी जगह कोई और कलर मिल गया, सो दैट विल मेक योर ड्रग अडल्टरेटेड. ओके. Next one is if it is mixed with other drug. Okay, this is very important. जो mixing है वो superior drug में भी है और adulterated drug में भी है, क्योंकि आपको कुछ ड्रग अलग मिली, कुछ अलग मिली, कुछ ड्रग अलग मिली, कुछ ड्रग, मान लो मैंने एक इंजेक्शन का सैंपल लिया, पैरासीटामोल सपोज कीजिए, उसमें पैरासीटामोल भी मिला और डाइक्लोफिनेक भी मिला, तो अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सुपीरियर है या अडल्टरेटेड है? इट बिकम वेरी डिफिकल्ट. लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे एक्शन नहीं लेते अनटिल अनलेस हम जो टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजते हैं, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसमें क्लियर कट मेंशन होना चाहिए कि इसमें पैरासीटामोल भी मिला है और डाइक्लोफिनेक भी. देन वी विल गो फॉर the action whether it will be adulterated or spurious. Next one is misbranded drugs. Misbranded drugs मतलब वैसे सुनने में नाम बहुत तगड़ा लगता है कि हाँ misbrand है, but actually it is least offensive. सबसे बड़ा offense जो है वो spurious drugs और adulterated drugs का रहता है. Misbrands just कोई labeling error हुआ हो, simply future में याद रखना हो तो anything that is have some labeling error, जितने भी labeling error होंगे वो misbrand drugs के होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से कि जो डाइक्लोफिनेक है वो 12 साल से कम बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए, ये एक वार्निंग लिखी रहती है, अगर आप स्ट्रिप उठा के देखोगे ये मिस हो गई, दैट विल बिकम अ मिसब्रांडेड ड्रग. एक वो जितने भी शेड्यूल एस ड्रग्स होते हैं, एक 1 mm की रेड लाइन होती है कॉर्नर पे, अगर वो नहीं है तो दैट विल बिकम ए मिसब्रांडेड ड्रग. फॉर एग्जांपल एक मैंने सिरप खरीदी जिसके अंदर वो क्लेम कर रहा है कि 100 ml की बोतल है, इसमें 100 ml है, अगर वो 100 ml ना होके उसमें 90 ml ही मिला, so that will also become a misbrand drug. ओके, मतलब लेबलिंग पैरामीटर्स जो है वो थोड़ा सा मिसगिविंग है, थोड़ा सा इनएक्यूरेट है. कंटेंट की बात तो बाद में आती है, बट इफ a drug is failing completely in label, that will become a misbranded, or giving an any statement that makes the false claim. फॉर एग्जाम्पल ये दवाई हाइपरटेंशन को जड़ से मिटा देगी, जो मैजिक रेमेडीज टाइप की जो चीजें रहती हैं उसमें कि ये ड्रग आपके बाल उगा देगी, सो दे एक्चुअली फॉल्स अंडर मैजिक रेमेडी, बट दे आर आल्सो misbranded drugs. So this is all
regarding with your space drugs, misbranded drugs and adulterated drugs. मोटे तौर से जो आपको याद रखना है. So next is we are coming to the another, that is the drug regulatory authorities in India. What is the mission for us and for the regulatory authorities of India? The mission is that we have to ensure the safe and effective medicine that should reach up to the patient. जैसा तैसा करके किसी का केस बना के किसी को जेल करा के हमारा सिर्फ मिशन यही रहता है कि ड्रग्स जो है सेफली मार्केट में आए और इफेक्टिव हो और पेशेंट्स जो भी पेशेंट ले, जो भी गरीब आदमी उसको ले, उसने पैसा दिया है तो डेफिनेटली उसको असर होना चाहिए, किसी गरीब के पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए. ओवरऑल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन रहता है, ये ऑब्जेक्टिव रहता है. अभी मैम ने कहा कि CDSCO और IPC पे कुछ बोले तो वो that will I will keep for future presentation, because अगर मुझे पहले बताया गया होता तो definitely I will incorporate the CDSCO and other parameters also, but still the brief जो है CDSCO का वो आज इसमें फिर भी है कि जो भी अपना regulatory authorities हैं, we have two, one is at central level and one is at state level. The central level, central government have National Drug Authority, that we call it as. So we under this we have Central Drug Standards Control Organization, CDSCO, and the head for this one is Drug Controller General of India. Further we have Deputy Drug Controllers, Assistant Drug Controllers and Drug Control Officers, Medical Device Officers. They all comes under the central government का जो main है, जो main role है, how they are going to regulate. First of all, they are going to do the product registration, the formulation registration. जितने भी आपकी ड्रग, जैसे रेमडेसिविर पहले मार्केट में आने से पहले इसका प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन आपके सेंट्रल ड्रग अथॉरिटीज वहाँ पर इसको परमिशन ग्रांट होती है, पर प्रोडक्ट परमिशन ग्रांट होना ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज करती है. लाइसेंसिंग द प्रोमिसेस, ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर द ड्रग्स, कि कौन सी ड्रग्स, स्टैंडर्ड्स का सिंपली वर्ड होता है स्टैंडर्ड्स, आइडेंटिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ. मीन टू से कि आप उस ड्रग को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे उसकी कंसंट्रेशन पता लगाओगे और वो प्योर है या नहीं है. सिंपल मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज दैट. नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ द इंपोर्टेड ड्रग्स. जो बाहर से जो ड्रग्स इंडिया में आ रही है उनके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, उनकी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, क्या होगा उस पे. दे सब ऑल दैट वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स दैट दे हैव टू फॉलो बिफोर कमिंग इनटू द इंडिया. Adverse drug reactions, for example अभी recently black fungus का disease हुआ था तो amphotericin B इंजेक्शन है, उसमें recently हमने एक केस किया था कि उसको लगाने के बाद लोगों को 15 मिनट में किसी को हाइपोटेंशन हो गया, किसी को चक्कर आ गए, within 15 minutes there is a lot of adverse reaction. So that's why we have reported also that कि ड्रग में कोई दिक्कत हुई है, whether it is a defect in formulation part और इसको लगाने से का तरीका ठीक नहीं था. It's undergoing an investigation case, but the report will come soon. And approval of your new drugs and conduct the clinical trials. जितने भी clinical trials की permission है वो state government नहीं देती है. It is given by your central drug. किस ड्रग को बैन करना है, किस ड्रग, जैसे कि बहुत सी ड्रग्स आज बैन होती रहती हैं, कुछ ड्रग्स नहीं आती रहती हैं, अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स. तो ये सब जो काम है, अमेंडमेंट्स करना है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, तो ये सारा काम आपकी सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, CDSCO करती है. जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें मोस्टली जो रिटेल सेल और होलसेल की लाइसेंस को ग्रांट करना, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म अगर किसी स्टेट में है तो वो सेंट्रल के साथ मिलके उस फर्म का इंस्पेक्शंस करती है. सो वी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज एंटायरली डिफरेंट and your, although it is a part of that, but still majority of work is done by your central government, all the new kind of work. And we have generally 6 offices of central drug, and one in North Zone, South Zone, East Zone, West Zone, Hyderabad Zone. 6 offices we have located for this smooth conduct. Shivans, beta baith jao.
So next one is being as a drug regulator. So ये जो बी फॉर्म के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मुझे बताया गया था बी फॉर्म के स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है स्पेशली आपके करिकुलम में भी होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा कि रेगुलेटर्स में दो इम्पोर्टेंट जो बैकबोन है, वन इज ड्रग कंट्रोल ऑफिसर एंड अनदर इज गवर्नमेंट एनालिस्ट। ये दो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन है, तो इनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि हाउ दे वर्क, कैसे ये काम करते हैं और कैसे ज्ञान। तो फर्स्ट वन, एक जो एक्ट में आप लोगों का सैम्पलिंग प्रोसीजर, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर के वैसे तो बहुत से रोल रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल कि वो भी किसी भी विदाउट लाइसेंस की परमिसेस को सीज कर सकता है, वो कहीं पे भी जहाँ दवाई रखी हो वहाँ का सैंपल ले सकता है, किसी भी व्हीकल को रुकवा सकता है, उससे सैंपल ले सकता है, कोर्ट केसेस कर सकता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है सैम्पलिंग प्रोसीजर। So sampling procedure, how it is a drug inspector or drug control officer is going to be take the samples. For this, जब भी वो drug inspector sample लेगा, तो he have to give a written intimation in form 17. Form 17 होता है drug enforcement है, उसमें लिखा रहता है कि आपने क्या sample portion क्या लिया है, कौन सी ड्रग का सैंपल लिया, डिटेल्स उसमें फिल की जाती है और किससे आपने सैंपल लिया है। जब भी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अगर किसी रिटेल सेल या होल सेल से सैंपल लेगा, तो उसको 4 सैंपल पोर्शन बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 200 टैबलेट्स ली सैंपल के लिए, तो मैं उसको 4 भाग में डिवाइड करूंगा, हर एक भाग के अंदर 50 50 50 50 ऐसे आएंगे। तो अब इन सैंपल पोर्शंस को मैं सील लगा के अच्छी तरह से धागे से बांध के पैक करूंगा, और ये सील्स जो हैं वो इंटैक्ट होनी चाहिए, आप वीक नहीं होनी चाहिए, ये सील्स टूटने नहीं चाहिए। जनरली अगर टूट जाता है तो मीन टू से समबडी हैव डन टेम्परिंग इन इट, तो वो टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। और हर एक सैंपल पोर्शन जो भी लेंगे हम उसके ऊपर सैंपल आईडी लिखी जाती है कि ये सैंपल आईडी इस सैंपल को कोरस्पॉन्ड करती है। तो जो हमने 4 पैकेट्स बनाए हैं उसमें एक सैंपल पोर्शन जिससे हमने सैंपल लिया है उसको हैंड ओवर करते हैं, दूसरा सैंपल पोर्शन हम ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजते हैं, तीसरा सैंपल पोर्शन जो है एक्चुअली ये मैन्युफैक्चर के लिए बना होता है कि जस्ट टू आइडेंटिफाई कि वेदर की ये जो सैंपल लिया गया है, क्योंकि मैन्युफैक्चर डायरेक्ट किसी भी रिटेलर या होलसेलर को कई बार सामान अपने ड्रग्स नहीं देता, वो अपना स्टॉकिस्ट को देगा, स्टॉकिस्ट फिर होलसेलर को देगा, होलसेलर फिर रिटेलर्स के पास आएंगे, तो इट्स ए लॉन्ग चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज रहती है। तो उस केस में क्योंकि सैंपल पोर्शन सिर्फ 4 ही बने हैं, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक केयर कि मैन्युफैक्चर को एक सैंपल पोर्शन मिले कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये मैंने ही बनाया है, कोई सुपीरियर से अडल्ट्रेटेड का ऐसा कोई केस तो नहीं है कि किसी ने खाली लेबल कॉपी करके हमारे नाम से ड्रग्स बना दी हो। एंड द लास्ट सैंपल पोर्शन इज मेंट फॉर कोर्ट प्रोसीडिंग। अगर कोई सैंपल पर्सन फेल हो जाता है तो जो लास्ट जो होता है वो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अपने पास रखता है केस करने के लिए, कोर्ट प्रोसीडिंग करने के लिए। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ये तो है अगर किसी रिटेलर या होलसेलर से अगर वो सैंपल ले रहा है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म से सैंपल लेता है डायरेक्ट जहाँ पर मैन्युफैक्चर दवा हो रही है, तो ही हैव टू मेक ओनली 3 सैंपल पोर्शन एंड 1 उसको वहीं दे देना है, दूसरा टेस्टिंग लेबोरेटरी के भेज देना है, और तीसरा कोर्ट प्रोसीडिंग के रखना है, क्योंकि चौथा उसको पता है कि मेरे यहाँ से ही सैंपल बना है, तो ही डिड नॉट नीड सैंपल पोर्शन फॉर दैट आइडेंटिफिकेशन वेदर इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मी और नॉट। और जब भी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सैंपल लेता है उसकी जो भी अमाउंट होती है ही हैव टू पे टू द रिटेलर, होलसेलर जो भी है उसको जितनी भी अमाउंट का है, क्योंकि उसका नुकसान नहीं करना होता, तो उसको जितनी भी अमाउंट है ही हैव टू पे टू हिम, और उससे एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी लेता है कि यस कि ये सैंपल जो है मेरी उपस्थिति में मेरे सामने पैक और सील बंद किया गया, मैंने इस पे अपने हस्ताक्षर किए। उसकी भी जहाँ से सैंपल लिया है उसको भी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसके साइन उसके ऊपर करवाए जाते हैं कि यस कि बाद में वो डिनाई नहीं करे कि यह मेरे प्रेजेंस में नहीं लिया गया। तो इसको बचने के लिए तो वी हैव टू मेक द साइन ऑन ईच एंड एवरी सील्ड सैंपल पोर्शन। So this is the form 17 that I am taking about, कि इसमें किस परमिसेस से आपने सैंपल लिया उसकी डिटेल्स रहती हैं, और ये सील इम्प्रेशन मैच होता है। ये सील इम्प्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप ये वैक्स सील लगा रहे हो, चपड़ी लगा रहे हो, ये सील इम्प्रेशन आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी में जाके मैच होता है, वो मैच करते हैं कि यस
कि ये जो सैंपल पोर्शन है किसी ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने लिया गया है या किसी और ने लिया गया है, या इसके साथ कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें से ग्राउफ्लेक्स टैबलेट का सैंपल लिया गया, सुपरमॉक्स का टैबलेट लिया गया। तो इसके बाद सैंपल लेने के बाद मैंने बताया कि एक सैंपल पोर्शन टेस्टिंग लेबोरेटरी का भेजा जाता है, दैट इज फॉर्म 18। सो जो जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2-4 फॉर्म्स उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रख लें तो अच्छा रहेगा कि कौन से फॉर्म में सैंपल भेजा जाता है और कौन से फॉर्म में सैंपल लिया जाता है। फॉर्म 17 is for your sampling and form 18 is your for to the government analyst जिसके पास भी आप भेजोगे। So next is very important, the report of government analyst। क्योंकि ड्रग कंट्रोल ऑफिसर की मेन पावर्स क्या है कि वो ही हैव टू इंश्योर दैट जैसे तैसे करके सैम्पलिंग करके या जैसे तैसे करके कि कोई भी नकली दवा मार्केट में नहीं आए। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर के पास कोई एक्सरे मशीन या फिर सीटी स्कैन तो नहीं होता कि वो देखते ही बता दे कि यस ये ड्रग आपकी जो है वो सुपीरियस होगी या मिस ब्रांड होगी, अडल्टरेटेड होगी, बट ही हैव टू सेंड दैट सैंपल फॉर गवर्नमेंट एनालिस्ट। द गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट इज गोइंग टू डिस्क्लोज दैट वन। वो उसको बताएगी कि यस कि द उसको बताएगी कि यस कि ये ड्रग मिसब्रांडेड है, अडल्टरेटेड है या सुपीरियस है। ऑल्दो कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल बेस्ट मैं अगर कहूँ कि अगर कोई भी ड्रग बिना बिल के आ रही है तो उसके मैक्सिमम चांस है कि वो सुपीरियस होगी, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है जब बिलिंग किसी को दवाइयाँ उपलब्ध कराता है तो डेफिनेटली ही विल गिव द परचेज बिल एंड द सेल बिल्स। अगर कोई भी आपकी ड्रग विदाउट बिल के आ रही है तो उसके मैक्सिमम चांसेस है कि वो सुपीरियस हो गई। दूसरा, हम कुछ लेबल क्लेम्स से भी पता लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस है। और कुछ जैसे कि कुछ टैबलेट्स खुद की इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो क्विनीन की जो टैबलेट्स आती हैं वो कड़वी होती हैं। अगर आपको वाकई आप क्विनीन का सैंपल उठा रहे हो, किसी और स्ट्रिप से आप एक टैबलेट निकाल के देखो, अगर वो आपको कड़वी नहीं लगी तो मीन टू से यस इट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इट मे बी बट ये एक्सपेरिमेंट आप लोग मत करना, और आई विल नॉट से टू रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट टू एनीवन, क्योंकि ये पता नहीं उसने क्या डाल रखा हो। सो आई विल नॉट रिकमेंड यू। हाँ, कुछ टेस्ट लेकिन आप कर सकते हो। जब भी आप सैंपल को लेते हो तो डेफिनेटली कुछ टेस्ट आप सब लोगों के लिए भी फिजिबल हैं और मेरे लिए भी फिजिबल हैं। वो टैबलेट को आप एटलीस्ट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जरूर कर सकते हो। कोई भी टैबलेट लो, पानी में डाल के देखो, अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रही है तो यस वन टेस्ट इज यस समथिंग है। अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुई वो तो वहीं आपकी, तो आप भी एज ए वर्क है, यू कैन वर्क एज ए ड्रग कंट्रोल ऑफिसर एंड देन रिपोर्ट टू अस कि सर ये मैंने टैबलेट्स ली, ये मैंने पानी में डाल के देखा, ये डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ है, आप प्लीज इसका सैंपल लीजिए। वी समटाइम्स यू बिकम द आईज ऑफ अस। लोग जो कंप्लेंट्स हमको फॉरवर्ड करते हो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हजारों ड्रग्स मार्केट में आती है, बट हजारों पेशेंट हैं जो अलग अलग तरह के ड्रग्स लेते हैं। तो ये आप एक हल्का सा अगर को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जस्ट टू आइडेंटिफिकेशन। सो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सैंपल पोर्शन बना रहा है 4 और गवर्नमेंट एनालिस्ट एक क्वेश्चन जीपैट के लिए ये भी हो सकता है कि ड्रग कंट्रोल ऑफिसर जो है कितने सैंपल पोर्शन बनाता है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से सैंपल लेगा तो 3 बनेंगे, और अगर वो रिटेल या होलसेल से सैंपल ले रहा है तो 4 बनेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कितनी कॉपीज में अपनी रिपोर्ट सेंड करता है। सो दिस इज इन 3 कॉपीज। 3 कॉपीज में गवर्नमेंट एनालिस्ट जो सैंपल पोर्शन ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने टेस्टिंग लेबोरेटरी को भेजा है, वो 3 कॉपीज में उसकी टेस्ट रिपोर्ट आएगी। एक टेस्ट रिपोर्ट उसको जहाँ से उसने सैंपल लिया है उसको देनी होती है, दूसरी टेस्ट रिपोर्ट उसको मैन्युफैक्चरर को भेजनी होती है कि भैया देख तेरा प्रोडक्ट है और ये फेल हुआ है, और तीसरी उसको खुद के अपने पास रखनी पड़ती है कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए, क्योंकि अगर उसको प्रोसिक्यूशन करना है, मीन टू से उस पर केस करना है उसके, तो ही हैव टू कीप द ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद हिम। सो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट आती है दैट इज इन फॉर्म 13। फॉर्म नंबर 13 ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें आपकी जो भी टेस्ट सैंपल ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ने भेजा है उसकी रिपोर्ट
फॉर्म नंबर 13 में आए हैं, उस पर लिखा रहता है कि इन माय ओपिनियन, जैसे कि आप देखो इस पे लिखा है कंडीशन ऑफ द सील, सील कैसी है, इंटैक्ट पाई गई, सील टूटनी नहीं चाहिए, इस तरह से पैकिंग होनी चाहिए। और लास्ट में ये लिखा रहता है इन द ओपिनियन ऑफ द अंडरसाइंड द सैंपल इज रेफर्ड टू बी नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ओके, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब है कि इसमें आपकी अडल्टेटेड, सुपीरियस और मिस ब्रांड सभी आती हैं, लेकिन आप रेगुलेटरी बॉडीज में आप उसके कंटेंट के कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया उसके बेस पे आप क्लासिफाई करते हो कि यस कि ये कुछ, क्योंकि हर एक ड्रग जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है उसकी रिपोर्ट कुछ एक लिख भी देते हैं कि यस इट इज अडल्टेटेड ड्रग, कुछ एक नहीं लिखते हैं, बस खाली नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग लिख के छोड़ देते हैं। बट नाउ यू हैव टू कोरिलेट विद द डेफिनेशंस ऑफ सुपीरियस, अडल्टेटेड एंड मिस ब्रांड। सो दैट इज नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो सारा गेम है जो रेगुलेटरीज का है, जो फार्मा इंडस्ट्रीज और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के बीच में जो लड़ाई चलती है वो चलती है ये गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट आने के बाद। अगर कोई भी सैंपल आपका अगर फेल हो गया है तो 28 दिन का टाइम पीरियड होता है मैन्युफैक्चर के पास कि उसको रिप्लाई करने के लिए कि क्या वो चैलेंज करना चाहता है या नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चर है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर वो स्टेट की जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट है अगर उससे सहमत नहीं है तो ही कैन चैलेंज। शिवांश बेटा प्लीज, हाँ थोड़ी देर तक, तो ही कैन चैलेंज द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एनालिस्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चर तो हमेशा चाहेगा कि मेरे सैंपल पास हो, मैंने कोई गलती नहीं की है, बट स्टिल सैंपल फेल्ड। although इन इंडिया 1 से 2% सैंपल फेल होते हैं और इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो ही विल चैलेंज यस ही विल गिव ए रिटन लेटर टू आइडर, या तो कोर्ट में बोलता है, सबमिट करता है, या फिर वो आपका ड्रग कंट्रोल ऑफिसर को बताएगा कि यस कि मैं जो रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट की आई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ और मैं इस टेस्ट रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहता हूँ। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब भी वो ऐसा अपने रिटर्न में स्टेटमेंट देता है कि यस आई वांट टू चैलेंज, देन द गेम विल बिगन। इट हैव ए राइट फॉर, मैन्युफैक्चरर हैव ए राइट फॉर रीटेस्ट और एनालिसिस। वो चाहे तो अपनी ड्रग को, जो लास्ट सैंपल पोर्शन मैंने बताया ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के पास रखा रहता है, वो इसीलिए ही रखा जाता है कि अगर मैन्युफैक्चरर उसको चैलेंज करना चाहें तो वो सैंपल पोर्शन सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, जनरली जो केमिकल एग्जामिनेशन की किसी ड्रग की होती है तो वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता ही जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ ड्रग फॉर रीटेस्टिंग इज डन बाय, मोस्टली इट इज बाय सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता। वी हैव अदर टेस्टिंग लेबोरेटरी लाइक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली, वो सिर्फ इंजेक्शन, टॉक्सिन, वैक्सीन इनकी टेस्टिंग करता है। वी हैव अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। तो कोर्ट, yes, it will intimate to drug control officer, yes, you came here and submit the sample portion in the court so that we can send for retest analysis for central drug laboratory. अब जो है ये सैंपल पोर्शन कोर्ट ही उसको सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी भेजता है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर उसको नहीं भेज सकता। और जब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है, दैट इज इन फॉर्म 2, वो आपकी कंक्लूसिव रिपोर्ट रहती है। भले ही आपका सैंपल जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट में फेल हुआ है, लेकिन अगर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट्स में वो स्टैंडर्ड क्वालिटी या पास हो जाता है तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट ही फाइनल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार ये इशू आता है कि मैन्युफैक्चरर ये क्लेम करता है कि सर जो इन्होंने मेथड का, जो टेस्टिंग का प्रोटोकॉल है वो जो जिस तरह से हमने बनाया है उस तरह से इन्होंने टेस्ट नहीं किया, इसलिए इनका जो मेरी ड्रग ऐसे में फेल हुई है या मेरी ड्रग इसमें फेल हुई है, हम अपना इसलिए इसको रीटेस्ट कराना चाहते हैं। तो अगर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी चाहे तो जो पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो होती है उस केसेस में जनरली ऐसा ये इशू आता है। तो सेंट्रल ड्रग अगर वो चाहे तो यस दे कैन डिमांड द मेथड ऑफ एनालिसिस और टेस्टिंग प्रोसीजर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर आल्सो। तो जो सेकंड रिपोर्ट जो होगी सेंट्रल ड्रग, वही कंक्लूसिव रिपोर्ट होती है। इसमें चाहे अगर फेल आया तो फेल है, ड्रग इज फेल्ड, अगर पास हो गया तो भले ही स्टेट ने फेल कर रखा हो, बट इफ सेंट्रल ड्रग इज क्लेमिंग दैट यस द सैंपल इज पास, तो केस वहीं ड्रॉप हो जाता है, इसके आगे कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो पाती है।
this is regarding something brief of the important part of backbone of drug regulation systems, drug control officer. And again, I will say drug control officer and the government analysts are complementary to each other. I will say complementary. They are the strands on which a drug control officer can launch prosecution. Now, these are some regulatory activities that is performed by the Kota Drug Department, the drug department team. We have a team of 5 members with assistant drug controller. So these are some activities that we have seized. जो मेडिकल क्वैक्स होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, बट स्टिल दे आर गोइंग टू कीप द ड्रग्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम. सो वी आर गोइंग टू सीज देम, उसको जब्त करके वी विल टेक द कस्टडी ऑर्डर्स एंड लॉन्च द प्रोसिक्यूशन. क्योंकि किसी भी एलोपैथिक ड्रग्स को रखने के लिए until unless it is not for personal use, you have to take an license. चाहे रख रहे हो, रखने का मतलब बेचना ही होता है वैसे. So you have to take that license for that. नेक्स्ट, अभी कोरोना हुआ था तो डेफिनेटली सैनिटाइजर्स की बहुत डिमांड आई थी. तो ड्रग डिपार्टमेंट को कोटा दे हैव जितने भी देसी दारू की फैक्ट्रियाँ थी वो हमने बंद करा दी और उन सब में सैनिटाइजर्स का निर्माण चालू करवाया था. सो दैट इज आल्सो एप्रिशिएटेड वर्क बाय कोटा ड्रग डिपार्टमेंट टीम. Next is Kota. You know, Kota is the city of students. It is a city of स्टडी सेंटर्स. तो यहाँ पर बहुत से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, अपना करियर बनाने के लिए आते हैं. लेकिन कुछ टाइम यहाँ पर हुक्का बार्स बहुत चले हैं. तो with the God of grace and with CMHO, we have raided the hookah bars and seized many of the articles. I can surely say that you can come in Kota and you will not find any hookah in Kota. So हमने सबको बंद करा दिया because तो किक लगता है, भले ही वो कहते हो कि ये फ्लेवर्ड है, ये है, वो है, बट इट स्टिल कंटेन्स द निकोटिन. सो नेक्स्ट वन इज, अभी जैसे कि कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी चली थी कि कोविड जो भी पेशेंट है हम उसको कन्वल्सेंट प्लाज्मा का सिंपल मीनिंग में वर्ड होता है, किसी को अगर कोविड हुआ है तो उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी, हम वो प्लाज्मा हम डायरेक्टली वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू द पेशेंट हु इज प्रेजेंटली सफरिंग फ्रॉम कोरोना. तो इसके लिए भी हमें सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है. तो हमने कन्वर्सन जैसे तैसे करके कि कोविड में नुकसान बहुत कम हो, वी हैव ग्रांटेड अ लाइसेंस वेरी फास्ट फॉर द कन्वर्सन प्लाज्मा थेरेपी. नेक्स्ट वन इज दैट वी हैव सीज्ड द एम्प्टी कैप्सूल सेल्स. दे आर यूज्ड फॉर, बिकॉज खाली हैं तो डेफिनेटली you can fill any of them, but they fall under the definition of a drug, even empty capsule cells. That's why we have seized all those capsule cells. अभी कुछ दिन जब कोरोना चला तो डेफिनेटली मास्क के रेट बढ़े थे और के सैनिटाइजर के बढ़े थे. Yes, we have raided the premises and launched the FIR against those ones who were found engaged in this trafficking in this. Next one is yes, the government supply. Yes, जैसे कि अपना राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी होगा क्योंकि इसकी सरकार की तरह से कुछ निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती होंगी. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सप्लाई सम फ्री मेडिसिन्स. वो फ्री मेडिसिन्स पेशेंट के लिए होती है और हॉस्पिटल में ही रहनी चाहिए. अगर वो फ्री मेडिसिन्स किसी बाहर की दुकान पे बिकती मिले तो मीन टू से यस, ड्रग डिपार्टमेंट इज इनएक्टिव. तो जैसे ही हमें किसी ने खबर दी, एक्चुअली सेल्फ इंटेलिजेंस, हम रूटीन चेकअप पे भी जाते हैं, तो यहाँ एक मेडिकल स्टोर था जिसके पास गवर्नमेंट सप्लाई के इंजेक्शन मिले थे, तो वो हमने जब्त किए और उसके खिलाफ हमने फिर अभी कोर्ट में केस किया है. बिकॉज दिस इज मेंट फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड शुड बी केप्ट इन हॉस्पिटल्स ओनली, not for any retail and wholesale that will not distribute the injection freely. That definitely he will take the money from them. Next one, जैसे कि मैंने बताया कि अभी एम्फोटेरिसिन बी कुछ हुआ था कि फॉर्मुलेशन डिफेक्ट था कि एक साथ इतने पेशेंट बीमार हो गए. So we are going to find out कि whether this is a drug formulation error or it is a medication error. So investigation is going on for this case. Next one is very important. Narcotics departments. Drug department is separate and narcotic department is separate. So कुछ एक drugs जो narcotic drugs होती है, if you will take the license, yes, you can buy them,
but you have to sold them under the prescription and maintain the record. लेकिन कई बार क्या है कि लोग एल्फोजुलाम, ट्रामाडोल, डाइफ्लॉक्सलेट, ये बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो खरीद लेते हैं और नशे के रूप में लोगों को देते हैं। अगर आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ लिमिट तक डेफिनेटली ड्रग कंट्रोल ऑफिसर का रोल रहता है, लेकिन उसके बाद नार्कोटिक टीम उसके ऊपर एक्शन करती है। तो हमने एक ज्वाइंट रेड की थी नार्कोटिक टीम के साथ मिलके, और नार्कोटिक टीम का एक्शन जो है रियली दे विल, बेटा 2 मिनट, सो दे विल डेफिनेटली, बहुत खतरनाक आई विल से नार्कोटिक में अगर किसी का केस बनता है तो रियली वेरी डेंजरस। So that is also a good action from the drug department with collaboration with narcotic department. So that is our team located in the right hand side. So we are 5 presently, 4 is saying, and I think one is taking the photograph, so that's why he is missing in this. Thank you very much for, this is all from my side. And recently Haryana drug control officer exam has been conducted. My 17 students have passed the drug inspector exam. 17 लोग ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में क्वालिफाई हुए, और शायद एक्सपीरियंस पर्पस ऑफ व्यू से चाहिए था या नहीं चाहिए था, कोर्ट में केस चला तो फाइनल लिस्ट में 5 बच गए, लेकिन अभी भी उस पर डिसीजन आना बाकी है कि वेदर की एक्सपीरियंस चाहिएगा या नहीं चाहिएगा। अगर नहीं चाहिएगा तो 17 स्टूडेंट्स डेफिनेटली you will find my students in Haryana. अगर होता है या नहीं होता है, in both of the conditions you are going to find them. Thank you very much from my side. This is, and now any questions from the students and the faculties or rest of the peoples? Very nice presentation, Dr. Sandeep. और साथ में हम शिवांश को भी देख रहे थे, डुअल रोल प्ले कर रहे थे आप। मम्मी अभी हॉस्पिटल में गई हुई है, शिवांश पे तो वो भी आपको देख रहे हैं। प्लीज थोड़ा उधर बीइंग अ पेरेंट्स, ये भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, एंड ऑफ कोर्स आई नो टुडे इज सैटरडे। यस हेलो शिवांश, गुड आफ्टरनून शिवांश। हेलो करो। Okay. I'm glad if I'm going to address any questions and queries from your side. बेटा देखो वो आप स्क्रीन पे आ गए ना, थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज। मम्मा आने वाली है। I request जिन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल है, they may put on their camera. Yes. Yeah. Good afternoon, everyone. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have a question. सर जैसे कि आपने कहा था कि गवर्नमेंट एनालिस्ट फाइनलाइज करता है कि अडल्ट्रेटेड है या सुपीरियर है, मिस ब्रांडेड है ड्रग। फाइनल कई बार आता है, कुछ एक गवर्नमेंट एनालिस्ट लिख देते हैं, कुछ एक नहीं लिखते, वो खाली NSQ नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी लिख के छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा काम है, जैसे कि मैंने बताया कि एक ड्रग का अगर मान लो वो नील है तो ही विल ओनली राइट in my opinion and understand opinion the ease of note of standard quality and the essay of this drug is filled with label claim of essay, that is अगर वो नील है खाली NSQ लिख रहा है लेकिन हमें पता है कि वो सुपीरियस है, then we are going to make the case of superiors. कुछ जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की रिपोर्ट आती है, मैंने कई बार देखा है कि वो क्लियर कट मेंशन करती हैं कि यस ये अडल्ट्रेटेड है, सुपीरियस है। इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट एनालिस्ट टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, कोई दे देता है कोई नहीं दे देता है, बट वी आर अ रेगुलेटरी बॉडी, वी हैव टू जज फ्रॉम दैट द टेस्ट रिपोर्ट कि यस कि इसमें कौन सा केस बनेगा। ओके नहीं सर, जैसे सुपीरियर्स और अडल्ट्रेटेड में आपने एक पॉइंट बताया था कि इनको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अडल्ट्रेटेड में भी 2 ब्रांड मिक्स हो सकते हैं और सुपीरियर में भी या तो वो पार्शली होगा या होली का होगा फर्क। तो सर उसको जो गवर्नमेंट एनालिस्ट है वो कैसे फाइनलाइज करता है, किस बेसिस पे कि यादर इट इज सुपीरियर और अडल्ट्रेटेड? नहीं वो अगर मैं बता रहा हूँ अडल्ट्रेटेड तभी मानी जाएगी जैसे कि अगर मैंने एक इंजेक्शन या फिर मैंने एक टैबलेट ली जो ये कह रही है कि उसके अंदर पैरासीटामोल है खाली, लेकिन उसके अंदर पैरासीटामोल के साथ साथ डाइक्लोफिनेक भी है। तो अब डाइक्लोफिनेक जब तक लिखा नहीं आता तो हम उसको अडल्ट्रेटेड नहीं मान सकते। अगर वो डाइक्लोफिनेक लिखा आ गया यस इट कंटेन्स पैरासीटामोल एंड डाइक्लोफिनेक, मीन टू से यस इट इज अडल्ट्रेटेड, क्योंकि जो उसने लेबल क्लेम किया वो खाली पैरासीटामोल का था, अब उसमें डाइक्लोफिनेक भी आ गया तो
अडल्ट्रेटेड कैटेगरी आ जाएगी। ओके ओके, अगर वो लेकिन सुपीरियस अगर 0 है, बस ये मोटिव दिमाग में रखना कि सुपीरियस नकली इफ इट डज नॉट कंटेन्स द एक्टिव साइट। सर इट मींस अगर आप कभी मिस ब्रांडेड मेडिसिन मतलब सैंपल कलेक्ट करते हैं, सो इट कुड बी कि वो इन फ्यूचर स्पूरियस निकले, आई मीन अडल्ट्रेटेड निकले या स्पूरियस निकले टेस्ट करने के बाद। हाँ, निकल सकता है यस, क्योंकि वो लेबल क्लेम ही उसका उल्टा सीधा है। लेबल क्लेम उसने लिख दिया डाइक्लोफेनाक 100 mg, लेकिन उसमें मिला 0 है। अरे बेटा थोड़ी देर बैठ जाओ ना, तो इट्स मे बी समहाउ the misbranded drug may have, I will say, the maximum chance of superiors अगर उसकी लेबलिंग ठीक से नहीं है। ओके सर, वन अनदर क्वेश्चन इज दैट जैसे कि मैन्युफैक्चरर कहता है, क्लेम करता है कि नहीं मेरा सैंपल फेल नहीं पास है, तो अपने जैसे कोलकाता में भेजते हैं सैंपल के लिए, तो सर अगर वहां से पास होके आता है तो जैसे अगर वो फेल है तो ऑब्वियस पेनल्टी वगैरह होगी, कोर्ट में जाएगा केस, तो अगर वो पास पेनल्टी नहीं होती सर इन दैट केस? सेंट्रल ड्रग रिपोर्ट जो है वो फाइनल होती है। अगर देखो जो गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो स्टेट की जो रिपोर्ट गई, मान लो कि आप हिसार में हो, हिसार का कोई ड्रग कंट्रोल ऑफिसर होगा, ड्रग इंस्पेक्टर होगा, वो उसको सैंपल लेके मोस्ट प्रोबेबली शायद चंडीगढ़ जाती हैं, जहाँ भी आपकी टेस्टिंग लेबोरेटरी होगी स्टेट की, वहां पर चली गई, उसकी रिपोर्ट आ गई। अगर उस रिपोर्ट को मैन्युफैक्चरर चैलेंज नहीं करता है तो इट मीन्स दैट कि वो अंडरस्टूड है कि उसने उसको मान लिया कि यस कि मैंने ये NS नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन बनाई है, तो वो कंक्लूसिव रिपोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट एनालिस्ट की ही रह जाती है। लेकिन अगर वो उसको चैलेंज करता है, चैलेंज करने के बाद अगर सैंपल पोर्शन फिर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आता है, तो उसकी जो भी रिपोर्ट आए, चाहे वो पास की आए या फेल की आए, वो फाइनल रहेगी। जैसे स्टेट वाले ने फेल कर दिया और सेंट्रल वाले ने पास कर दिया, तो सेंट्रल रहेगी, दैट इज द फाइनल रिपोर्ट, और कोई भी ऐसा फाइन वाइन नहीं, द केस इज ड्रॉ। ओके, अदरवाइज अगर फेल होगी तो पेनल्टी तो होगी ना सर, कोर्ट चार्जेस वगैरह? आइदर उसको जेल हो सकती है, मोस्टली तो प्रोविजन हमारे यहाँ फाइन का कम है, जेल ही होती है मोस्टली, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑफेंस। ओके, और सर अगर बाय चांस पास हो जाए तो ऐसा भी होता है कि वो उन पे भी जो स्टेट गवर्नमेंट उन पे केस कर सकता है कि मेरा पास था ऐसा? नॉट एट ऑल। ओके सर, थैंक यू सर। हम किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं कि इसका फेल हो गया भाई इसको दवाई मत लेना। We are not going to do that. That is unconfidential. एडवर्टाइजमेंट, अगर हम गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो हम पे केस डाल देंगे। So we are not going to do. Advertisement is strictly prohibited. Okay sir, thank you sir, thank you so much. Any other? चलो मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? मेरा भी क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछता है। सर आपने बी फार्मा के बाद ड्रग इंस्पेक्टर कैसे, क्या मतलब क्यों सिलेक्ट किया ऐसे? चलिए मैं बी फार्म के बाद नहीं, मैं पीएचडी के बाद बना। My PhD from Naipur Mohali Pharmaceutics Department. एक्चुअली क्या था कि मैं जब PhD फाइनल ईयर में था तो नाइपर मोहाली में राजस्थान के कुछ एक जूनियर्स थे, तो वो आए कि सर आप ये फॉर्म भर दो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं क्या यार मेरे हरियाणा में तो इंटरव्यू होता है यार, उसमें रिटन द एग्ज़ाम तो नहीं होता। उस टाइम हरियाणा सिर्फ इंटरव्यू होता था पहले, तो अब शायद रिटन अभी चालू हुआ, पहली बार ही हुआ है। तो हमारे यहाँ हरियाणा में तो नहीं बनती बात, नहीं सर आप रिटन है इसमें और इंटरव्यू नहीं है। आई वाज सरप्राइज्ड, यार इंटरव्यू नहीं है, लेकिन भर दे फिर। उसी ने मेरा फॉर्म भरा एंड ही गॉट रैंक 16 और मेरी रैंक 2nd आई एग्जाम में। हो जाता कई बार जब किस्मत साथ हो, बस बन गए थे। क्योंकि मेरी PhD लास्ट था, I think 3.6 year I have completed my PhD, so last 2 months ही बचे थे जब एग्जाम कंडक्ट हुआ। With a good God of grace I been selected। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो विशेस होती हैं, कई बार जब आप बी फॉर्म में होते हो तब
कई बार आप भगवान से मांग ले तो ये भगवान ड्रग इंस्पेक्टर जरूर बनाना। वो ऊपर वाला सुनता है लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हो कई बार, तो लेट हो गया मैं उसमें। मुझे पता नहीं क्योंकि वी आर फ्रॉम हरियाणा, आई एम फ्रॉम रोहतक, तो जो हरियाणा का ही रहता है, तो ज़्यादा हम लोगों को पता भी नहीं रहता, इस करके थोड़ा सा हो जाता है। डॉक्टर संदीप, इसमें भगवान की कृपा है और किस्मत वो सब चीज है, बट आई नो लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो आपने अपने प्रोफेशन में या अपने करियर में जो डाला है, ये सब उसका नतीजा है। एंड आई नो other people can also see the number of times you have cleared GPAT, GATE, and of course NET JRF. मेरा एक पर्सनल ये है कि यार अगर फार्मेसी में होना तो आपको फार्मेसी का कोई भी एग्जाम हो क्रैक करना। फार्मेसी में आई विल से एंजॉय द फार्मेसी। वो एंजॉय वही कर सकता है जो उसको दिल से लगा के। आई स्टिल रिमेम्बर मेरा व्हेन आई क्वालिफाइड द नेट जीआरएफ, तो मैं बैक टू नाइपर मोहाली गया। तो इंटरव्यू में सर ने मुझसे पूछा कि संदीप, यू हैव ऑलरेडी डन एम फॉर्म फ्रॉम नाइपर मोहाली, so why you are again coming back to Naipur Mohali? You can go in IITs and lot of other things. Although I have left IIT Roorkee there, IIT Roorkee में हुआ था मेरा, बट वो फार्मा का नहीं था, इसलिए मैं उसको क्विट करके आ गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि why again in Naipur Mohali? Then I have said only one sentence, sir, Naipur is in my blood. That's it. उसके बाद उन्होंने कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा और यस यू आर सिलेक्टेड। दैट्स व्हाई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो फार्मेसी में है तो कोई भी एग्जाम हो आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपने 4 साल लगाए हैं, ठीक है, और 4 साल एक अच्छे दिल से लगाओ। देखो काम सारे करो, एंजॉय करो, पढ़ाई लिखाई करो, एक्टिविटीज करो, और जो भी आपका होता है उस उम्र में वो सब करो, आई विल से। बट कीप योर एजुकेशन ऑन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आपकी एजुकेशन वीक है तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। मुझे याद है कि बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, तो कई बार होता था। तो एक शेर है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपने थोड़ा सा शेर दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि आज की जनरेशन पे ये सूट करेगा, अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली। आज से बहुत से लोग जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस, ड्रेसिंग्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट उन दिनों ऐसा कुछ था नहीं। आई विल बाय ए गुड बुक rather than buy a jeans. So, भले ही हाल फटे हाल रहे हो हमारे, भले ही हाल फटे हाल रहे हो हमारे, पर किताबों के पन्ने हमने खूब सवारे, अपनी कई हसरतों को मौत दी, पर कभी किताबें खरीदने में कंजूसी नहीं की। तो आई विल से कि बुक्स आपके बेस्ट फ्रेंड है, लाइफ टाइम आपके साथ चलती हैं, तो बुक्स खरीदने में कंजूसी मत कर लेना। आई थिंक दिस इज माय स्टडी रूम, इफ समथिंग इज विजिबल, आई हैव लॉट ऑफ फार्मेसी बुक्स एंड आई डोंट नो व्हेदर इट वाज विजिबल और नॉट। नो आज के टाइम में भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। और रेखा मैम, थैंक्स टू यू, एक बार फिर से आपने मुझे रीजनरेट किया कि मैं अपने पास्ट से मिल सकूं, अपने पुराने साथियों से मिल सकूं, पुराने फ्रेश फील कर सकूं। हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था सब लोगों से, आई फॉरगॉट। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट ओवरऑल समराइजिंग द प्रेजेंटेशन पार्ट। फॉर एग्जांपल, I have lifted a sample of cisplatin. Cisplatin is an anti-cancer drug. और जो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट आई उसमें जो लेबल क्लेम था सिस्प्लेटिन का, इट इज सेइंग इट कंटेन्स 10 मिलीग्राम। गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट आई कि इसमें सिस्प्लेटिन 1 मिलीग्राम है और कार्बोप्लेटिन 9 मिलीग्राम है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये ड्रग मिसब्रांड है, अडल्ट्रेटेड है, या सुपीरियस है? Have you got my question, all of you? I have lifted a sample of cisplatin whose label was claiming that it contains 10 milligram of cisplatin, but the government analyst report stated that it contains cisplatin 1 milligram and carboplatin
9 milligram. So what, in which category of drug it will fall? It will fall in misbrand, it will fall in adulterated, or it will fall in spurious. Vikas, I think Vikas wishes to answer. Yes, Vikas, you are raising your hand. यार विकास तेरी शक्ल तो दिखा यार. Where he is? I am not able to see him. तो बहुत क्वेश्चन है यार उससे है. ओह, हरियाणा का छोड़ा है, माड़ा है लेकिन है. Yes. बोलो विकास. अनम्यूट करो बच्चे पहले. गर्लफ्रेंड ने म्यूट करने से मना कर दिया होगा. अरे तुम मत बोलियो, ऐसा भी हो सकता है. तो देखो चला ही गया बेचारा. Vikas, yes, Vikas, would you like to answer? मैं मिस ब्रांड बता रहा हूँ. मिस ब्रांड हो सकता है. मिस ब्रांड हो सकता है. एनी अदर? सर अडल्ट्रेटेड होगा क्योंकि अपने कहा था कि अगर ब्रांड ड्रग भी होगी तो भी अगर उसका टेस्ट करेंगे. यस सर, एडल्ट्रेटेड होगा सर, क्योंकि उसमें एडल्ट्रेटेड होगा और स्ट्रेंथ कम करने के लिए मतलब एनोदर ड्रग ऐड करते हैं, तो सर एडल्ट्रेटेड हो. यार ये जो एक्सेंट था ये पक्का हरियाणवी छोरी का है. इससे लगा मुझे हाँ कि मैं हरियाणा में प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ. आई लाइक दैट. एनी अदर? ओके, ये सिर्फ आखिरी क्वेश्चन मैं इसलिए पूछा था कि कौन सो रहा है. I just want to check whether the students are sleeping or not, just to wake them. So the answer is that drug will be definitely misbrand because जो ये क्लेम कर रही है, जो लेबल पे 10 मिलीग्राम लिख रहा है, 1 मिलीग्राम रहा है, तो मीन टू से misbrand surely. The drug will be definitely adulterated because जो साल्ट है उसके साथ दूसरा साल्ट भी मिलाया गया है उसकी पोटेंसी को या फिर कुछ और चीज को कम करने के. तीसरा डेफिनेटली, अब ये सुपीरियर है या नहीं है ये आप मुझे बताओगे. तो है मिसब्रांड भी है और अडल्ट्रेटेड भी है. नाउ इट इज सुपीरियर और नॉट. सिर्फ सुई है यहाँ पे आके अटक गई है. सर ये नहीं है क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट सिस्प्लेटिन की प्रेजेंट तो है. चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ. ठीक है, आप लोग मुझे बताना अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई कम्युनिकेशन करना हो तो माय ईमेल आईडी इज sandeepkaili sandeepkaili05@gmail.com. मैं फेसबुक से भी जुड़ा हूँ और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाऊंगा. तो जब आपको कोई भी अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन इंटरेक्ट विद मी एनी डे एनी टाइम. एंड लास्ट तो मैं आप सब लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो बी फॉर्म का हो या एम फॉर्म का हो, इंजॉय करना है फार्मेसी. ये मस्ट इंजॉय एवरी सब्जेक्ट, फील करना है फार्मेसी को. इवन मैं तो खैर फार्मेसी में शेरो शायरी भी करता हूँ क्योंकि ये वेबिनार है, मैं कर नहीं सकता तो फिर कभी एनी हाउ, लेकिन मैं मैसेज जरूर कंडक्ट करूंगा. एक मिनट फटाफट. शरीर जवाब दे नहीं सकता, शरीर जवाब दे नहीं सकता जब हौसला इस दिल में है. हसीन सपने देखने की हसरत हर मन में है, लेकिन इसे पूरा करने की हिम्मत बहुत कम में है. यूं तो आकाश में सितारे बहुत हैं, पर दिन में चमकने वालों की गिनती बहुत कम में है, बहुत कम. तो आई विश कि आप सब लोग दिन में चमको. हाँ, आप सब लोग दिन में चमको. और आपको तो सभी चमकते हैं, सूरज के सामने खड़ा रहो, आपकी चमक दिखाई दे. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. इफ यू हाँ यस आप देख रहा हूँ बेटा, अगर आपका और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो थैंक यू वेरी मच. वेरी नाइस संदीप. संदीप सर ने मेरी प्रेजेंटेशन एंजॉय की है, स्माइल अच्छी दे रहे हैं. Yes. I hope so. I did my job. I don't know whether it was good or worst, but Sir is showing the gesture. Huh? Yes. Yes, Nikita, we may continue. Yes, ma'am. We are approaching the end of the session. Yes. Okay. I hope today's webinar must have given all the
immense knowledge regarding drug and their regulators. I would like to thank our worthy guest, Dr. Sandeep Kumar, who took out his valuable time from his busy schedule and enlightened us with immense knowledge and his experience. I would like to give my vote of thanks to Pratap sir, Director of Training and Placement Cell, our Dean of our Department, Pharmaceutical Science, Professor Neeru Vasudeva ma'am, our Chairperson, Professor Sumitra Singh